for LC circuit is, okay, LC circuit in which inductive potential VL should be 90 degree ahead to current. Okay, similarly, if only capacitor is to be connected, then VC should be lagging behind by 90 degree. But in the case LC circuit, both inductance and capacitors are to be connected. So their resultant potential V should be VL difference VC, and this will be acts in that direction. जिधर भी कैन लार्जर वैल्यू होगी, VL की तरफ होगी तो VL और VC की तरफ होगी तो VC. मगर दोनों ही सिचुएशन में इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो π/2 होगा, यानी आपको इसमें π/2 लिखना है. ओके, सेकंड देखिए, द रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड RMS वैल्यू ऑफ करंट. ऑलवेज RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू should be equals to 1/√2 times of the peak value I0. So the relation will be IRMS is equal to I0/√2. तो आपको ये फिलअप करना है. थर्ड देखें, द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज द सेकेंडरी कॉइल फॉर स्टेप देन सेकेंडरी कॉइल. तो देखिए, transformation ratio for transformer is given by the number of turns in secondary coil divided by number of turns in primary coil. And for transformer, step of transformer, K should be more than 1, यानी कि NS by NP is more than 1. So NS should be more than NP, means number of turns in primary coil will be less as compared to secondary coil. So here the objective will be fill up by word less. The phase difference between current and potential for pure R circuit. For pure R circuit, potential difference B and current I should be in same phase. Since they are in same phase, so their phase difference phi should be 0. So here the option will be 0. Fill up जो करेंगे आप 0 लिखेंगे. Okay. An instrument used for measuring the alternating current based on effect of current. Alternating current, direct current. Direct current is measured by एमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर ऐसे हम यूज करते हैं. दे ऑल डिवाइसेस बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बट अल्टरनेटिंग करंट डू नॉट शो magnetic effect of current. That's why all the devices, ammeter, voltmeter, which are used for measuring alternating current are based on thermal effect. Okay, so they based on thermal effect. तो इसका आंसर आपको लिखना है थर्मल इफेक्ट पर बेस्ड होंगे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं जो कि चूज द राइट ऑप्शन है. देखते हैं क्या है. देखते हैं, कैपेसिटर अलाउ पासिंग थ्रू कौन को अलाउ करता है. तो कैपेसिटर ओनली AC को अलाउ करता है, DC को ब्लॉक कर देता है. बिकॉज इसका जो रिएक्टेंस होता है वो होता है 1/C ओमेगा. ओमेगा मीन्स 2 पाई न्यू. न्यू इज फ्रीक्वेंसी, सो इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी. So only AC current which has a frequency 50 cycle per second allowed to pass by capacitor, है ना. DC will block. तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी होगा. ओके, आगे देखते हैं. सेकंड, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड बिकॉज ऑफ रिड्यूस टू इफेक्ट ऑफ कॉपर लॉस, फ्लक्स लीकेज,
Hysteresis loss or eddy currents. So there is a drawback of eddy current. Whenever by using transformer we transfer the energy, electric energy from one place to another place, then there will be loss of energy, and this loss when because of eddy currents, then to remove this loss it is necessary to increase their resultant resistance, and it is possible only when the transformer core of transformer is laminated. So यहाँ पर आपको जो ऑप्शन रखना होगा वो रखना होगा डी, यानी एडी करंट को लिए हम इसको बनाते हैं, ठीक है। टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी वी यूज द डिवाइस डायनेमो, मोटर, ट्रांसफार्मर और नन। देखिए हम फैन चलाते हैं तो फैन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से मोटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ऐसे हम कई अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम मोटर यूज़ करते हैं। सो हियर द ऑप्शन शुड बी ए, यानी बी, मोटर। इट्स अ मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। Option B is true option. So the frequency of AC in India. इंडिया में AC की फ्रिक्वेंसी आपको ध्यान होना चाहिए 50 हर्ट्ज होती है, 50 साइकिल पर सेकेंड। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो इस प्रकार के थे। अब आपको 1% है। द पीक वैल्यू ऑफ AC इज I0. What will be its average current in complete cycle? Alternating current should follow the path like this. So in one direction whenever it reach to peak then it will be I0, but in second half it will be minus I0. So whenever we taking average I0 and minus I0, it will be 0 because plus and minus will be cancelled, so it will be 0. So 0 यहाँ पर आपको आएगा, लिखना है कि इसमें एवरेज जो होगा 0 होगा। राइट द ऐसा यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। देखिए रिएक्टेंस अल्टीमेटली इट इज़ द रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, दे ऑल आर टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, एंड सिंस दे आर रेजिस्टेंस सो इट्स यूनिट इज सेम एज द रेजिस्टेंस, दैट इज ओम। What is the meaning of wattless current? Actually current, even power consumption is 0, called wattless current. पावर कंजम्पशन ना होने के बाद भी करंट आ रही है, दैट इज वाटलेस करंट। अब अगले में वो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट सिचुएशन करंट इज वाटलेस, तब भी यही देंगे इफ पावर कंजम्पशन इन अ सर्किट इज 0 देन करंट इज वाटलेस करंट। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं मैच द कॉलम। देखिए मैच द कॉलम में हमारे पास क्या आ रहा है। मैच द कॉलम में सबसे पहले आ रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू होगा एल ओमेगा, मीन्स पहले का ऑप्शन होगा थर्ड। सेकंड कैपेसिटिव एक्स सी इज इक्वल टू होता 1/c ओमेगा या 2 पाई न्यू, ओमेगा के प्लेस पे 2 पाई न्यू भी दे सकते। सो सेकंड का होगा फोर्थ। सिमिलरली इम्पीडेंस ऑफ आरएल सर्किट, आरएल सर्किट में एक्सएल होना चाहिए। तो बताइए थर्ड में एक्सएल किस में दिख रहा है, अंडर टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यानी कि सेकंड। इसी प्रकार फोर्थ देखें इम्पीडेंस इन सीएल सर्किट, सीएल सर्किट में या आरएल सर्किट होना चाहिए, सीएल सर्किट नहीं होना चाहिए। सीएल सर्किट का नहीं है ये आरएल, ये अगर सीएल सर्किट का होगा तो इनमें से कोई भी नहीं है। बट अगर आरएल सर्किट का देखें तो ये होगा कौन सा, फिफ्थ। और ठीक इसी प्रकार यानी यहाँ पर सीएल वर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ वर्ड आरएल होना चाहिए। और इसी प्रकार से जो फिफ्थ है ऑब्जेक्टिव उसका आंसर फर्स्ट होगा। तो इस प्रकार से आपके पास सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। ओके, आज भी इतना ही, बाकी देखते बाद में।